recording also. So last topic which we have already discussed one, that is Boyle's law. उसके बाद चार्ल्स लॉ तो कल देखा था. वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/p provided number of moles and temperature constant. Volume directly proportional to temperature providing number of moles and pressure is constant. So today I'm going to start. चलो कल का एक brief revision ले लेता हूँ. K is any constant, nothing is correlated with that constant. क्यों? V1 upon T1 equals to V2 upon T2. ये हम लोगों ने किया था. ओके. गौतमी बोला आई कांट हियर यू. गौतमी फिर से रिज्वाइन कर. गौतमी रिज्वाइन करो. गौतमी ठीक. ऐसे कैसे हो रहा है? इको साउंड इतना ज्यादा. चलो भाई आ जाओ. नाउ द today's topic is, please write pressure, temperature law. Pressure temperature law or pressure temperature law और गे-लुसैक्स लॉ. इसके पहले भी हम लोगों ने गे-लुसैक्स लॉ बट वॉल्यूम के लिए, रिएक्शन के लिए किया था. दिस इज फॉर गैस स्टेट, not for the reaction. Okay, what is that actually? Same. Pressure is directly proportional to temperature provided number of moles and volume is constant. So please write definition first. Please write down definition first. Please write down definition first. लिखो for fixed amount of gas, for fixed amount of gas, a fixed mass of the gas लिखे तो और अच्छा है. For fixed mass of the gas, for fixed mass of the gas, fixed mass of the gas, pressure is directly proportional to, 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 directly proportional to temperature, directly proportional to temperature, directly proportional to temperature. Okay. सर Yes. ये आप फिर से रिपीट करेंगे क्या एक बार प्लीज? मैंने बोला कि for fixed mass of the gas, for fixed mass of the gas at constant volume, pressure is directly proportional to temperature of the gas. Okay.
for fixed mass of the gas, at a constant volume, pressure is directly proportional to temperature. Pressure is Okay, sir. directly proportional to temperature. Now clear? ओके सर, Yes. लिखा। Yes. आ जाओ भाई, फिर से बिल्कुल कल की तरह है। K is any constant. Its value is not fixed one. ठीक है, श्रावणी एक्सप्लेन कर दिया, फिर से करना है क्या? जल्दी बोल। माय वॉइस इज लो प्रणव, ऐसा कैसे भाई? माय वॉइस इज लो? नो। अगर ऐसा है तो प्लीज रीज्वाइन, प्लीज रीज्वाइन, हाँ, रीज्वाइन। For fixed mass of the gas, volume of the gas, for fixed mass of the gas at constant volume, pressure of any gas is directly proportional to temperature. Okay, आ जाओ। तो रेशियो ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर इज ऑलवेज कांस्टेंट, ये भी लिख सकता था, बट ये लिखोगे तो 0 मार्क्स देंगे वो लोग। अगेन infinite points are there where ratios will be equal, Pn upon Tn. So at any time, क्या हो जाएगा? P1 upon T1 is equals to P2 upon T2. ऐसा। ओके, Yes, sir. Yes, sir. Okay, sir. चलो भाई आ जाओ। Sir, it should be T2. Yes, definitely it should be T2. P2 upon T2. आ जाओ भाई। P versus T. T must be in Kelvin. T must be in Kelvin. Again, P is any constant K multiplied by T is in Kelvin. Y एक्सिस पर P है, ये कोई भी कांस्टेंट है, एंड X एक्सिस पे क्या है? ये Temperature. X एक्सिस पे T है ना? Yes, sir. Yes, sir. यस, लास्ट स्लाइड जल्दी करो श्रावणी। यस, डन।
चलो आ जाओ भाई। तो x ये तो क्या हो गया, पावर 1 है ना, तो स्ट्रेट लाइन x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0। बस फिर क्या है, जस्ट लाइक सबको म्यूट कर दूं मैं। चलो भाई, सबको म्यूट कर दिया मैंने। अब बोलो, ठीक। सेम सेम if it is in degree centigrade will follow this one। ऐसा क्यों हुआ, प्रेशर कैसे जीरो हो गया भाई? -273 पर डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रेशर जीरो कैसे हुआ? प्रेशर जीरो का मतलब हो गया when all gases are converted into solid, मतलब volume of gas is zero, it is converted into liquid or solid, definitely its pressure become zero, है ना। वॉल ऑफ कंटेनर पे वो तो एक जगह बैठ गए, तो प्रेशर विल बी जीरो, प्रेशर विल बी जीरो, ऐसा। सेम, व्हाट इज कांस्टेंट एवरीवेयर? वॉल्यूम। So this is called as isocoric। What is isocoric? वॉल्यूम जहां कांस्टेंट होता है। तुमको याद ना हो, याद नहीं रहता है तो याद कर लो आइसोचोरिक। आइसोथर्मल सबको याद रहता है, टेम्परेचर कांस्टेंट। आइसोबारिक, बार इज यूज फॉर प्रेशर, 1.01 बार इक्वल्स टू 1 एटमॉस्फेयर। प्रेशर बार को बोल रहे, ठीक है, समझ में आता है। वॉल्यूम का तो बिल्कुल ही अलग है, इसलिए आइसोचोरिक। आइसोचोरिक, आइसोचोरिक में क्या हो रहा है, वॉल्यूम इज कांस्टेंट। आइसोकोरिक लाइन, ओके। जितना भी ग्राफ तुमने कल किया था, all graphs will be same, replace pressure by volume, volume by pressure। suppose this is v1, v2, v3, v4, सेम बिल्कुल कल के जैसा, ऐसा। इसमें क्या हो जाएगा, v1 will be greater than, v2 greater than, v3 greater than, v4। this is temperature। आइसोकोरिक है भाई, स्पेलिंग तो थोड़ा सा, एक मिनट, क्या लिख दिया मैंने, आइसो, CHORIC, आइसोकोरिक। आइसोकोरिक, प्लीज change it, this is isocoric। Isocoric, all the graphs will be same, please replace pressure by volume or volume by pressure। Done, very good। हाँ, I didn't understand the second graph। What is your second graph? This one? This is first, second and third। अब बोलो, तुम्हारा सेकंड मेरा सेकंड सेम है क्या?
यस, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो P इक्वल्स टू के, T को ऐसा लिख दे, नाउ डिग्री सेंटीग्रेड में 273 रख दे, हो गया केल्विन को। अब when T equals to minus 273 तब प्रेशर विल बी जीरो। देखो मैथमेटिकली एंड ऑल्सो minus 273 Kelvin, sorry, minus 273 0 degree centigrade is called absolute zero temperature. Absolute zero temperature पर all gas particles are converted into solid. अगर solid में convert हो गया तो pressure क्या exert करेगा? कुछ नहीं। Okay, getting my point? Yes. चलो भाई आ जाओ। कल की तरह है पूरा का पूरा, ऑल द ग्राफ्स। P upon T is always constant whatever pressure you are taking. P upon T is always constant whatever temperature you are taking. क्योंकि पहले ही बोला इस रेशियो इज ऑलवेज कांस्टेंट, है ना। I think everyone has plotted the graph now. Yes, yes. अगर तुमको लगता है तो इसको कल की तरह इसका डेरिवेशंस देख सकते हो। बोर्ड में आता है डायरेक्ट लिखो, बोर्ड में आता है डायरेक्ट लिखो। मैंने फिर से लिया क्या, एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड नॉट 0 केल्विन, assume pressure of gas is P naught. If 1 degree centigrade temperature is increased, then pressure is increased by 1 upon 273 times of P naught. So P1 will be P naught plus P naught का 1 upon 273 Kelvin, ऐसे। ओके, या नोट करना है तो और भी जल्दी नोट करो, फास्ट प्लीज। log P वर्सेस log T का भी ग्राफ प्लॉट कर सकते थे हम लोग। वेरी गुड, डन। आ जाओ भाई।
फिर से लिखा at 2 degree centigrade increment pressure P2 will be P naught का 2/273 3 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीमेंट पर P3 equals to P naught मैंने लिखा if T डिग्री सेंटीग्रेड is increased, then PT become P naught plus ऐसा। तो सॉल्व करो PT equals to P naught 1 plus T in Celsius ऐसा। So this PT equals to P naught 273 plus ऐसा। PT equals to P naught. This temperature is in Kelvin now. उसके बाद इधर का नोट करना है डिवाइडेड बाय T naught PT upon T P naught upon T naught. Please note down fast. Please note down fast. I'm telling you how these results are coming. How these results are coming. Okay. हो गया प्लीज यस वेरी गुड अब आ जाओ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट इफ टू क्वांटिटीज आर रिटन PT upon T P naught upon T naught it means that PT upon T in Kelvin is constant दो क्वांटिटीज ऐसे लिख जाते हैं तो ऐसा लिखता हूं so PT equals to constant multiplied by T in Kelvin scale. This implies that pressure is directly proportional to temperature in Kelvin scale.
अथर्व का इस प्रॉब्लम आहे का? अथर्व का इस प्रॉब्लम आहे का? चलो भाई, सब लोगों ने बोला है कि लिख लिया है। यस श्रीकांत बोल। आ जाओ भाई, चलो आ जाओ प्लीज। इस पर बेस्ड एक दो कल की तरह प्रॉब्लम करते हैं, हाँ? All temperatures are in Kelvin now. All temperatures are in Kelvin now. ओके? टी नॉट का मतलब है 0 केल्विन नहीं है, वो 273 केल्विन है, उसको टी नॉट लिखा है। आ जाओ प्लीज, लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग प्रॉब्लम प्लीज। लिखो लिखो, इफ अ कुकिंग सिलेंडर, इफ अ कुकिंग या एलपीजी बोल लो, चलो लिख लो। इफ अ एलपीजी सिलेंडर, if a LPG cylinder is placed, if a LPG cylinder is placed, if a LPG cylinder is placed, if a LPG cylinder is placed in, LPG cylinder is placed in, LPG cylinder is placed in a kitchen, in a kitchen, खाना जहाँ बना रहे हैं वहां पे सिलेंडर रखा हुआ है, हाँ? is placed in a kitchen, in a kitchen where temperature of cylinder is, where temperature of cylinder is, sorry, pressure, where pressure of the cylinder is, where pressure of the cylinder is 20 atmosphere, pressure of the cylinder is 20 atmosphere, 20 atmosphere, at temperature 300 Kelvin, at temperature 300 Kelvin, and if there is sudden fire, and if there is sudden fire, and if there is sudden fire, if there is sudden fire in kitchen, sudden fire in the kitchen, then find out temperature at which, 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 find out temperature at which cylinder will blast, cylinder will blast, cylinder will blast if it can sustain, if it can sustain, if it can sustain maximum, if it can sustain maximum
pressure of maximum pressure of 50 एटमॉस्फेयर। अब बोलो कौन सा लॉ लगाया जाए, बॉयस लॉ, चार्ल्स लॉ और गै-लुसाक्स लॉ। गै-लुसाक्स लॉ क्यों? क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज ऑलवेज कांस्टेंट। किसी को ऐसा लग रहा है क्या जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा सिलेंडर भी फैलता जाएगा? बोलो, ऐसा तो नहीं है ना भाई कि सिलेंडर फैलता गया। चलो भाई आ जाओ जल्दी से। 750 के बोल रहे हैं दर्शन, सही 750, इशिता 750, मंजरी 750, सब लोगों के 750 आ रहे हैं। क्या बात है भाई, सब लोगों के 750 आ रहे हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, देखते हैं। तो अप्लाई प्रेशर टेम्परेचर लॉ और गै-लुसाक्स लॉ। Since volume is constant, all these statements must be written. P1 is 20 atmosphere. Temperature must be in Kelvin. P2 is to be calculated. Sorry. P2 is given as 50 T2. So 300 multiplied by 50 divided by 20. So this is 750 Kelvin. Yes. No, Anusri and Sakshi. अच्छा, तुम लोग प्रेशर 50 बता रहे थे। ओके ओके, हाँ तब ठीक है, तब ठीक है। मुझे लगा ओके। इज देयर एनी प्रॉब्लम प्लीज? इज देयर एनी प्रॉब्लम प्लीज? नहीं, काइस प्रॉब्लम नहीं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सो अगर प्रॉब्लम नहीं है तो क्यों ना नेक्स्ट प्रॉब्लम पे मूव किया जाए। प्रॉब्लम तो होना चाहिए, प्रॉब्लम तो होना चाहिए, है ना? चलो भाई आ जाओ। नेक्स्ट वन प्लीज। लिखो इफ, यस क्या बोलना चाह रहे भाई? Kelvin, that is K is why K is given कहाँ पर? अरे टेम्परेचर मस्ट बी इन केल्विन स्केल ना रे बाबा। केल्विन का कुछ तो बोलेगा ना, नहीं हाथी घोड़ा क्या है, कुछ तो पता चलना चाहिए ना। आ जाओ भाई, नेक्स्ट वन प्लीज, नेक्स्ट वन प्लीज। लिखो इफ इनिशियल प्रेशर ऑफ एनी सिलेंडर, if initial pressure of any cylinder, if initial pressure of any cylinder is, initial pressure of any cylinder is, initial pressure of any cylinder is P1, is P1,
is P1 and temperature is T1 and temperature is T1. If if pressure is increased by if pressure is increased by 10%, if pressure is increased by 10%, pressure is increased by 10%, pressure is increased by 10%, then temperature is increased by 10 degrees centigrade. Increased by 10 degree centigrade. Then find out temperature T1. मैंने बोला था if any gas is at temperature T1 and pressure P1 and pressure is increased by 10%, then temperature is increased by 10 degrees centigrade. Then find out temperature T1. Find out temperature T1. देखो जल्दी से. चलो भाई आ जाओ. Apply P1 upon T1 equals to P2 upon T2. यस 100 आ रहे हैं रितायन के. इशिता 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, 100 केल्विन. इशिता के तो 100 केल्विन आए हैं भाई. देखते हैं P2 कितना होगा. P1 का 10% इंक्रीमेंट. व्हाट इज T2? केल्विन में ही ले ले T1 को. यस सब लोग को प्रॉब्लम होना चाहिए यहाँ पर. अभी तक जितने भी बैचेज आए हैं सब में प्रॉब्लम हुआ है. तुम लोग को प्रॉब्लम है या नहीं ये बताओ. वेदांग 300 केल्विन आ रहा है. बिल्कुल नहीं आएगा वेदांग. कुछ तो कहीं पे मिस्टेक किया होगा तुमने. देखो सपोज T1 इज T1 केल्विन. ओके 10 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करेगा तो केल्विन में भी उतना ही इंक्रीमेंट होगा क्योंकि उसमें तो सिर्फ और सिर्फ 273 ऐड करना पड़ता है. सपोज T1 सिर्फ इतना था. मुझे नहीं पता कितना इतना था. T2 10 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज कर दिया. हो गया. तो कुल मिलाकर के T1 प्लस
273। तो कुल मिलाकर के उतना ही इफेक्ट आया जितना तू डायरेक्ट ऐड करेगा। यस और नो? देन हाँ, अभी को आया ना, वेदांग बोल रहे हैं सर Y10। मैं वही तो बोल रहा हूं। सपोज 100 डिग्री सेंटीग्रेड is the boiling point of water। हाँ कर रहे, वही कर रहे हैं। ये कितना है? 373 केल्विन। वही तो देखो तो मैं वही तो बता रहा हूँ, वही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आई एम एक्सप्लेनिंग द सेम थिंग। नाउ टेम्परेचर इज इंक्रीज बाय 10 डिग्री सेंटीग्रेड। What will be the degree centigrade? Now what will be the Kelvin scale? आया नहीं आया? क्या फर्क पड़ रहा है? 10 डिग्री सेंटीग्रेड तो ऐड कर रहा है, वही तो बात हो रही है ना केल्विन में भी। T1 चलो 50 डिग्री सेंटीग्रेड था, तो T1 विल बी 50 प्लस 273। ओके, 10 डिग्री इंक्रीज कर दे, 50 से बिकम 60, तो अभी भी तो 10 डिग्री केल्विन का ही इंक्रीमेंट हो रहा है ना। यस और नो प्लीज, यस और नो प्लीज। मानस, मानस सर, बट केल्विन स्केल। मैंने प्रॉब्लम में बोला है 10 डिग्री सेंटीग्रेड इज इंक्रीज्ड। 10 डिग्री सेंटीग्रेड इज इंक्रीज, मैं बोलता हूँ 10 केल्विन इंक्रीज हो गया तो क्या प्रॉब्लम है? मैं बाबा वही तो एग्जांपल दे रहा हूँ। 100 डिग्री सेंटीग्रेड था, इंक्रीज करके 110 किया, तो 100 पर 373 केल्विन आ रहा है, 283 केल्विन आ रहा है। अरे 10% इंक्रीमेंट इन वॉल्यूम है, नॉट इन टेम्परेचर था। ओके, काहीच प्रॉब्लम आहे का रे? नहीं, नो प्रॉब्लम। आ जाओ भाई। सो P1 अपॉन T1, हर साल मैं वही तो बोल रहा था, हर साल सब लोग बोलते हैं सर ये समझाइए। इस बार लोग बोल रहे थे नहीं। आई वॉज क्वाइट सरप्राइज्ड। बट तुम लोगों ने भी वही काम किया जो सब लोगों ने किया, नॉट एनी इशू। हो गया। T1 is in Kelvin scale, T1 is in Kelvin scale, temperature must be in Kelvin scale। लास्ट स्लाइड ये लो, लिखो। हो गया, डन। ठीक है, डन। Now solve the problem. P1 cancel out. So this will be T1 plus 10, 1.1 T1. So T1 is 10 divided by 0.1 बस।
तो इसलिए सही ने बाय द वे गलती से बिल्कुल सही करके दिया था। 100 केल्विन लिखना जरूरी है बेटा वेदांत। है ना? चलो आ जाओ। अभी भी इफ एनीवन इज हैविंग प्रॉब्लम प्लीज लेट मी नो। Shall I proceed forward please? Yes. Very good. चलो भाई आ जाओ, आ जाओ प्लीज। यशराज कोई प्रॉब्लम है क्या? यशराज कोई प्रॉब्लम है? चलो भाई आ जाओ। तो let us proceed forward please. Let us proceed forward. Can you show the last slide please? चलो भाई जल्दी करो। अच्छा कैंसिल आउट का था। यस चलो भाई आ जाओ। Now the next law is Avogadro's law. Avogadro's law. Avogadro's law. लिखो। इसके अकॉर्डिंग क्या अवोगाड्रोस नंबर से रिलेटेड बोल रहा है। ये बोल रहा है कि अगर तूने इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस ले लिया, तीन गैस, गैस ए, गैस बी एंड गैस सी, गैस ए, गैस बी एंड गैस सी, और उनका प्रेशर टेम्परेचर सेम रखो सभी का, then they will contain equal number of molecules. Then they will contain equal number of molecules. ठीक है ना? So please write down statement. Please write down statement. लिखो equal volume of all the gases, 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 equal volume of all the gases at equal volume of all the gases at equal volume of all the gases at नहीं कट कर दो भाई, equal volume of all the gases contains equal number of equal volume of all the gases contains equal number of molecules equal number of molecules
if pressure and temperature are same, if pressure and temperature, if pressure and temperature is same, ठीक है ना। तो तूने अगर प्रेशर एंड टेम्परेचर सेम रखा और उसी कंडीशन पर 10 गैस ले लिया, गैस ए बी सी डी ई एफ जी एच, तो ऑल गैसेस विल हैव इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ओके, चलो भाई आ जाओ। तो क्या हो रहा है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। यस श्रीकांत, वेरी गुड, but provided pressure and temperature is constant. That's why V1 upon N1 equals to V2 upon N2. हो गया भाई। यस वेरी गुड, आ जाओ भाई, आ जाओ जल्दी से, फास्ट। इसीलिए अब मेरे पास अगर मैं इन सब को कंबाइन कर दूं, तो इन सभी को मैं कंबाइन कर दूं तो यू विल गेट डिफरेंट लॉ, यू विल गेट डिफरेंट लॉज। ओके, और उसी को मैं बोला करता हूं आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन। तो हम लोग अब स्लोली आइडियल गैस इक्वेशन की तरफ जाते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन की तरफ चलते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन की तरफ चलते हैं, है ना। और तुमको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स वगैरह उधर से ही मिलेंगे, या फिर इस पर भी एक प्रॉब्लम कर लेते हैं। लिखो प्लीज, लिखो एन ओपन फ्लास्क, लिखो एन ओपन कंटेनर, प्रॉब्लम लिखो एन ओपन कंटेनर, एन ओपन कंटेनर at 27 degree centigrade, an open container open container at 27 degree centigrade and if it is heated
if it is heated, then if it is heated, then one third of then one third of one third of gas is escaping gas is escaping, then find out final temperature of the find out final temperature of the gas, then find out final temperature of the gas. हाँ भाई, ये थोड़ा सा हम लोग इससे सॉल्व नहीं कर सकते। यस, स्केपिंग बोले मतलब कि वो भाग जा रहा है। ये प्रॉब्लम को थोड़ी देर के लिए छोड़ दो सभी लोग, मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वापस आऊंगा प्लीज, है ना। इस टाइम इसको सॉल्व करने के लिए मैं वापस आऊंगा, प्लीज अभी छोड़ दो। मैंने प्रॉब्लम तो उठा लिया, मुझे याद नहीं रहा ढंग से। वेदांग बोल रहे हैं कि फिर से बोलिए, प्रॉब्लम को बोलना थोड़ा सा क्या बोल रहे हैं हम लोग कि एनी गैस एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना, इन अ कंटेनर, और उसको मैंने हीट किया। नाउ स्टार्ट हीटिंग, तो वन थर्ड ऑफ गैस इज स्केपिंग, बाहर निकल करके भाग रहा है। तो वन थर्ड ऑफ द गैस इज स्केपिंग, देन फाइंड आउट टेम्परेचर एट दैट मोमेंट। तो हम लोगों ने नंबर ऑफ मोल्स पर कभी कोई रिलेशन किया ही नहीं है ना। नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर कोई रिलेशन किया ही नहीं है अभी तक टिल नाउ, इसलिए प्लीज इसको मैंने छोड़ दिया। कम से कम नहीं तो 5 लाइन छोड़ दो, हाँ, ऐसे ऐसे करके, ठीक। उसके बाद वी विल डील विथ, छोड़ दो अभी थोड़ी देर के, क्योंकि करने को कर लेंगे बट अभी नहीं, हमने कुछ नहीं करा है इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ सिर्फ। प्लीज आ जाओ, तो नेक्स्ट वन पे आ जाओ। आइडियल गैस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो हम लोग आज ये तीसरे लेक्चर में गैस स्टेट पर आए हैं, सब लोग डायरेक्टली एक लेक्चर में आइडियल गैस पे आ जाएंगे, डोंट वरी तुम्हारे फ्रेंड्स। हम लोग इतना उनसे स्लो चलते हैं, आराम से देखते हुए। चलो भाई, व्हाट इज आइडियल गैस? आइडियल बोल रहा है ना, आइडियल। अब कोई भी चीज आइडियल तो जल्दी होती नहीं है। अगर आइडियल नहीं होती है तो क्यों नहीं होती है? क्योंकि बहुत सारे एजम्पशंस लेकर के चलता हूं, है ना। तो बहुत सारे एजम्पशंस क्या थे? बहुत सारे एजम्पशंस ये थे कि गैस गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं होता है। मतलब अगर तूने सपोज CO2 लिया तो आइडियल गैस के अकॉर्डिंग देयर इज नो आइदर अट्रैक्शन आइदर रिपल्सन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स, जबकि ऐसा तो नहीं है भाई, होता है, बट उन्होंने एज्यूम किया आइडियल ने। फिर बोलता है कि टोटल प्रेशर ड्यू टू टोटल प्रेशर ऑफ द गैस इज ड्यू टू कोलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल्स एंड वॉल ऑफ कंटेनर, है ना। ये सब एजम्पशंस हैं जो कि रियल लाइफ में ऐसा होता नहीं है बेटा, तो इसीलिए हम लोग आते हैं, ठीक। तो प्लीज राइट डाउन स्टेटमेंट।
Please write down statement first. Write down statement first. Write down statement first. लिखो those gases which are following. 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 बेटा मेरे चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, ये माइक का कमाल है। थोड़ा सा इंटरनेट की वजह से फ्लक्चुएशन आ रहा होगा एंड रेनिंग सीजन की वजह से। तो व्हाट आई एम सेइंग, आइडियल गैस के लिए प्लीज दोज गैसेस विच आर फॉलोइंग। सो प्लीज यूज, सभी लोग यूज करो, हेडफोन वगैरह यूज करो, तब ज्यादा अच्छा रहेगा। हेडफोन वगैरह यूज करेंगे ना तो फिर बाहर की आवाज नहीं सुनाई देती है। आई एम ऑल्सो यूजिंग हेडफोन। हाँ, तो प्लीज राइट डाउन द स्टेटमेंट, प्लीज राइट डाउन द स्टेटमेंट। लिखो those gases which are following, those gases which are following, those gases which are following, which are following PV equals to nRT equation, PV equals to nRT equation, PV equals to PV equals to nRT equation, ब्रैकेट में लिख लो आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन ब्रैकेट में। So those equations, those gases which are following ideal gas equation, PV equals to nRT, are called as ideal gas. हो गया भाई? हाँ सर, अगर ये सब लॉ सही नहीं है तो हम ये पढ़ते क्यों हैं? अरे बाबा, पहले ABCD जानेगा तभी तो सेंटेंस बनाएगा ना, पहले जानेगा तभी तो सेंटेंस बनाएगा। मैं मानता हूं कि मुझे डायरेक्ट ये सब नहीं पढ़ना चाहिए था, जो रॉन्ग है उनको क्यों पढ़ रहे हैं, बट ये सब जरूरी है, तभी तो पता चलेगा ना, बेस तो पता होना चाहिए। चलो भाई आ जाओ, इसका डेरिवेशन फर्स्ट, बॉयल्स लॉ, फर्स्ट लिखा मैंने बॉयल्स लॉ। अभी कोई कुछ नोट नहीं करेगा, अभी कोई कुछ नोट नहीं करेगा, सिर्फ देखो कि कैसा लग रहा है, कोई कुछ नोट नहीं करेगा, सिर्फ देखो। यस, मांजरी ने हाथ उठाया, बोल मांजरी क्या प्रॉब्लम है?
What is the meaning of ideal gas? Sir, I didn't understand. देखते हैं, वो बोल रहे हैं जो इस गैस के इक्वेशन को फॉलो करेंगे उनको आइडियल गैस बोला करता हूं। ठीक है ना? अभी के लिए सिर्फ इतना कर लो, सब आता है धीरे धीरे। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स, टेम्परेचर कांस्टेंट, चार्ल्स लॉ, चार्लीस लॉ मैंने बोला था ना, याद हो तो फनी वे। वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट हो तो। थर्ड वन मेरे पास है वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, प्रेशर एंड टेम्परेचर ये सब क्या है? कांस्टेंट है। फोर्थ वन प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। दिस इज कॉल्ड एज गैल-यूसाइक्स लॉ। तो सबको लेना चाहिए था, मुझे लिखना चाहिए था। ये क्या था? एवोगैड्रोस लॉ। फिर था मेरे पास गैल-यूसाइक्स लॉ। प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो भाई दिस इज योर फ्यूचर प्रॉब्लम। This is your future problem. This is your future problem. What is the future problem? आईआईटी में पहले ही पूछ चुका है, उसके बाद ये नीट में आने के पूरे चांसेस है। उन्होंने बोला कौन कौन से लॉ को मैं कंबाइन करूं तो यू विल गेट पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। गेस करो सभी लोग, वाइल्ड गेस, वाइल्ड गेस। ओके, वाइल्ड गेस प्लीज। अबिदा बोल रही है 2 3 4। बोलो भाई, सब लोग बोलो, कुछ भी बोलो उल्टा सीधा। अरे बहुत होगा तो रॉन्ग होगा ना, और कौन सा? और रॉन्ग होगा तो मैं कुछ तो कर सकता नहीं, ना तो डांट सकता, ना तो मार सकता, कुछ नहीं कर सकता, दूर बैठा हूं तुमसे। किसी को ऐसा लग रहा है क्या सर वायर पकड़ करके आएंगे, मार करके चले जाएंगे? बोलो भाई, दर्शन बोले 1 2 3 4। अरे 5 कहां से आ गया रे प्रणव? स्नेहल बोल रही है एक्सेप्ट गैल-यूसाइक्स लॉ सबको रहो। 1 2 3 1 2 3 4 1 2 4 2 3 4। दर्शन बोल रहे हैं ऑल लॉज, वेदांग ऑल। चलो भाई देखते हैं, आ जाओ प्लीज। हाँ आ जाओ, ठीक है, ठीक है। अब मेरी केमिस्ट्री प्लीज। इसलिए बोला था कि कोई कुछ लिखेगा नहीं। तो सिर्फ और सिर्फ तुमको याद नहीं होता है तो ऐसे फनी वे में याद कर लिया, एबीसी लॉ। कहीं लिख तो नहीं सकते, बट याद हमेशा के लिए हो जाएगा, है ना? एबीसी लॉ, एबीसी लॉ। ए एवोगैड्रो, सी एसीबी क्यों लिख दिया रे बाबा, बोल एबीसी रहा हूं। ए एवोगैड्रोस लॉ, बी बॉयस लॉ, सी चार्ल्स लॉ। क्या था? तो मैंने लिखा कंबाइनिंग लिख लो, कंबाइनिंग फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट
second and third law, you will get volume. हमने तो पढ़ा होगा ना, ऐसा याद है तुमको फिजिक्स में? क्या? फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m2, 1/r², न्यूटन्स लॉ। मुझे ऐसा लगता है सब लोगों ने पढ़ा है न्यूटन्स लॉज। तो होता क्या था, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 डिवाइडेड बाई r का स्क्वायर, r का स्क्वायर। यस, तो वैसे ही है वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, क्या क्या है, 1/p इंटू टी इंटू एन, है ना? बिल्कुल उसी के पैरेलल। आ जाओ, v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट आया r, एन टी अपॉन p। ठीक, इसी को रीअरेंज किया, pv इक्वल्स टू nRT। प्लीज स्टार्ट राइटिंग नाउ, प्लीज स्टार्ट राइटिंग नाउ। फर्स्ट सेकंड थर्ड से ऐसा लिखो, फ्रॉम बॉयल्स लॉ फर्स्ट वाला, फ्रॉम चार्ल्स लॉ ऐसा। हो गया? प्लीज नोट इट डाउन। यस, हाँ मैं नहीं बोल रहा था कुछ भी। यस, हाँ मैं सब देखता हूँ, सब बताता हूँ, व्हाट इज आर, व्हाट इज वैल्यू ऑफ आर। तो याद करने के लिए कंबाइनिंग एबीसी लॉ बोला ऐसा। बट तो एग्जाम में क्या लिखेगा, कंबाइनिंग बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड एवोगाड्रोस लॉ।
So rearranging, you are getting PV equals to nRT. So P is the pressure, V is the volume, N is number of moles, and R is called as gas constant. Okay, it is called as gas constant, and R का value is 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर, मोल उस साइड गया इसलिए पर मोल पर केल्विन। ठीक है भाई, तो यहाँ पर लेक्चर को फिनिश किया जाता है और अब नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम लोग आगे देखेंगे। ओके, इसी के जस्ट आगे। चलो भाई।